Hello, students. Today we are going to start the first poem, and its name is My Mother at 66. This poem is composed by Kamla Das. First of all, let me tell you something about the poet Kamla Das, who was born in 1934 and died in 2009. Was born in Malabar in Kerala. She is Indian poet. She wrote under the pen name Madhavi Kutti. Has also published many novels and short stories. Her novel in English is Alphabet of Lust. Padmavati the Harlot and Other Stories is her collection of short stories that appeared in 1992. तो जो कमला दास हैं वो इंडियन पोइट हैं और माधवी कुट्टी पेन नेम उनका रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब वो कविताएं लिखते थे तो अपना रियल नेम कमला दास के नाम से नहीं लिखते थे, माधवी कुट्टी के नाम से लिखते थे और उनकी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स भी पब्लिश हुई हैं। कमला दास deals with the themes such as the complex subtleties of human relationships, quest for love, her failure to find love in life, displays feminist ethos in her poems and personal experiences. Students, कमला दास की पोइम्स के जो मुख्य बिंदु हैं, जो थीम्स हैं, वो हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हमारे जो संबंध हैं उनकी कम्प्लेक्स सटलिटीज़, बड़ी जटिल जो सूक्ष्मताएं हैं, और क्वेस्ट फॉर लव, एक तरह से रिश्तों में प्यार की खोज, हर फेलियर टू फाइंड लव इन लाइफ, और कुछ कविताएं उनकी ऐसी भी हैं जिसमें वो जीवन में प्यार पाने में असफल, असहज दिखाई देती हैं। डिस्प्लेज फेमिनिस्ट इथॉस इन हर पोइम्स, और उनकी पोइम्स में महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी बताया गया है और जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में भी। स्टूडेंट्स, ये रियल टेक्स्ट है माई मदर एट 66, जो आपकी फर्स्ट पोइम है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. इस पोइम्स में स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पोइट की मदर है, पोइट अपने माँ बाप के घर आई है, पेरेंट्स के घर आई है, और वो अब वापिस अपने घर जा रही है। तो कार में बैठ कर के जाती है, उसके साथ उसकी माँ भी बैठी है जो उसको एयरपोर्ट में सी ऑफ करने के लिए जा रही है। और जैसे ही वो अपनी माँ को देखती है जो उस समय कार में सोई हुई है, और अपनी माँ को देख करके वो काफ़ी उदास होती है, बिकॉज हर मदर इज़ वेरी ओल्ड, अनहेल्दी, एंड हर फेस इज़
pale. I want to tell you that it was a Friday morning. The poet was driving from her parents' home to Cochin airport. Her mother is sitting by her side. She is very old and unhealthy. The mother is sleeping, open mouthed. Her face is pale, colorless, like a dead body. The poet looks at her mother and feels pain to realize that she will not live longer. पोइट इसलिए दुखी है अपनी माँ को देख करके क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं. हर फेस इज़ पेल एंड अनहेल्दी एंड द पोइट थिंक्स दैट शी विल डाई सून, कि उसकी माँ कभी भी उसी हैं. और यही वो विचार है जो माँ की डेथ का विचार उसको काफ़ी उदास कर देता है. The thought of her mother's death makes her sad. She looks out of the window at running trees and merry children playing just to divert her mind. और अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, अपने ध्यान को माँ की डेथ के विचार के बारे में डाइवर्ट करने के लिए पोइट क्या करती है, वो कार की खिड़की से बाहर देखती है और बाहर क्या दिखते हैं, रनिंग trees and merry children playing just to divert her mind. इस तरह से the poet is using two contrasting images used by the poet to bring in positivity, ताकि उसके अंदर जो बुरे विचार चल रहे हैं, जो सैड विचार चल रहे हैं, उनको दूर करने के लिए वो रनिंग ट्रीज, और रनिंग ट्रीज क्या बताते हैं, डायनामिक एक्शन. Nobody can stop for someone. Nobody stops for their dears and nears for long. कुछ समय के लिए आप उदास हो सकते हो, कुछ समय के लिए आप किसी के बारे में दुख मना सकते हो, लेकिन लाइफ गोज ऑन कंटिन्यूसली. दीज आर द कंट्रास्टिंग इमेजेस. बच्चों को देखती है, दौड़ते हुए पेड़ों को देखती है क्योंकि पेड़ अपनी जगह में स्थिर हैं, लेकिन कार से उसे ऐसा लग रहा है कि पेड़ भाग रहे हैं. शी रीच इज एट द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पहुंचने पर आफ्टर द सिक्योरिटी चेक शी लुक्स एट हर मदर वंस अगेन. एक बार फिर से अपनी माँ की ओर देखती है. एंड शी फील्स द फेमिलियर एक, द चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर. यहाँ पर देखिए फेमिलियर एक. फेमिलियर एक क्या है, जाना पहचाना दर्द क्या है, द चाइल्डहुड फियर क्या है, वो बचपन वाला डर क्या है. जैसा आप जानते हैं कि छोटे बच्चे हमेशा इस बात से डरते हैं कि कहीं उनकी माँ गुम ना हो जाए. वही बचपन वाले विचार फिर से उसके दिमाग में उभरते हैं कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना जाऊं. हर फेस इज कंपेयर टू लेट विंटर्स मून. जब अपनी माँ को देखती है तो अपनी माँ के चेहरे को कंपैरिजन किसके साथ करती है, विंटर्स मून, बिकॉज इट इज़ डल एंड कलरलेस लाइक दैट ऑफ द विंटर्स मून. उसका जो चेहरा है, माँ का चेहरा, एक सर्दियों के चंद्रमा की तरह बिल्कुल डिम है, कलरलेस है, क्योंकि सर्दियों में जो लेट विंटर्स मून है वो काफ़ी डिम होता है, अपना प्रकाश उतना अधिक नहीं देता है जितना वो अन्य दिनों में देता है. सो हर फेस इज कंपेयर टू लेट विंटर्स मून बिकॉज इट इज डल एंड कलरलेस लाइक दैट ऑफ द विंटर मून. फेमिलियर हेयर रेफर्स टू, फिर से मैं आपको डिटेल में बता दूं कि फेमिलियर क्या है. फेमिल द पोइट्स बॉन्डिंग विद हर मदर इज़ वेरी इंटीमेट. किसी भी बच्चे की, किसी भी लड़की की, किसी भी व्यक्ति की अपनी माँ के साथ जो बॉन्डिंग होती है, जो रिलेशनशिप होते हैं, वो बहुत इंटीमेट होते हैं. शी एन्जॉयज़ क्लोज रिलेशनशिप विद हर मदर. और जो कमला दास है वो अपनी मदर के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप एंजॉय करती है. शी हैज़ फेल्ट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, सो इट इज़ फेमिलियर. वो अपनी माँ की बैड हेल्थ को देख करके उसके दिमाग में अपनी माँ की
डेथ का विचार आता है, उससे सेपरेशन का विचार आता है, अलग होने का विचार आता है, इसलिए इस एक को फेमिलियर कहा गया है। एट द एयरपोर्ट द पोइट स्माइल्स एट हर मदर एंड सेज सी यू सून अम्मा। सी यू सून अम्मा, ऐसा वो क्यों बोलती है? बिकॉज शी इज नाउ गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर। दीज डिपार्टिंग वर्ड्स सिग्निफाई रीएश्योरेंस ऑफ मीटिंग हर मदर। सी यू सून अम्मा एक तरह से पॉजिटिव की ओर हमें ले जाता है जब हम किसी को सी यू बोलते हैं, इसलिए कि वी आर होपफुल ऑफ मीटिंग दैट पर्सन अगेन। That's why the poet is saying see you soon amma. It means that she is hopeful of meeting her mother again. She is hopeful of her mother again. Thus the poem ends on a positive note. अंतिम लाइंस में जो see you soon अम्मा है और जो पोइट है she smiles at her mother, it shows that she is confident, she is sure that she will meet her mother once again. सो लास्ट में बिल्कुल पॉजिटिव नोट ये पोएम। इसके बाद स्टूडेंट्स यू विल हैव टू लुक इनटू द वोकेबुलरी। देयर आर सम वर्ड्स। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन रनिंग। स्प्रिंटिंग वर्ड हम स्विमिंग में यूज़ करते हैं, धीरे धीरे से जो दौड़ते हैं, जंप मारते हैं, दैट इज रनिंग। वेन मीन पेल, फेंट, डिम, सिकली लुकिंग। बीमार व्यक्ति का चेहरा कैसा हो जाता है? पेल। डोज, डोज मीन नैप। जैसे आप बस में बैठे होते हैं, कई बार क्लासरूम में कोई बच्चा उसे नींद आती है तो एक लाइट सी स्लीप होगी, उसको हम बोलेंगे नैप, स्नूज या डोज। कॉप्स, कॉप्स इज डेड बॉडी। ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी को क्या बोलते हैं? कॉप्स। स्पिलिंग, ड्रॉपिंग, स्प्रेडिंग आउट, बिकॉज दोज चिल्ड्रन आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। स्पिलिंग वर्ड हम वैसे यूज करते हैं जैसे आप पानी की भरी हुई बकेट लेकर के चलते हो, थोड़ा तेज चलोगे तो वो पानी क्या करेगा? दैट विल स्पिल ऑन द ग्राउंड, बाहर निकलेगा। तो लेकिन यहाँ पर बच्चे दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, दे आर spilling. Now you have to use these words in sentences of your own. ये वर्क है बच्चों। इसमें क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के लिए, ये आपने करने हैं और उसके बाद में फिर आपको ये क्वेश्चन लिखवा सकता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट feels? What is the kind of pain and ache that the poet feels? आप जानते हैं the poet feels the pain and ache of separation from her mother. Question number 2 is why are the young trees described as sprinting? These young trees are described as sprinting because it seems as if they were running. In reality, the car was running, the trees were not running, but it seems from inside the car that the trees were running. Question number 3 is why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? The poet is bringing this image of merry children spilling out of their homes because she is very sad at the thought of her mother's death. That's why she want to divert her attention from that sad thought. Question number 4 is why has the mother been compared to the late winter's moon? Mother has been compared to the late winter's moon because her face is dull, pale, colorless, like that of late winter's moon. Question number 5, last one is what do the parting words of the poet and her smile signify? You know, the parting words of the poet were see you soon amma and she smiles. These words signify the hope of meeting her mother again. Use of figure
figures of speech in the poem. Students, figures of speech are used to for the purpose of decoration, for the purpose of embellishment. कविता को सुंदर बनाने के लिए कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच का, जैसे आप हिंदी में अलंकार यूज करते हैं वैसे हम फिगर ऑफ स्पीच करते हैं, तो इसमें सिमिली का यूज किया गया है. सिमिली मीन्स, simile is a comparison between two dissimilar things that has at least one quality in same. simile में हम दो dissimilar, दो विभिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, सेम का नहीं. जैसे व्यक्ति का व्यक्ति से कंपैरिजन, एनिमल का एनिमल से कंपैरिजन, उसको सिमिली नहीं कहेंगे. अगर व्यक्ति का एनिमल के साथ, व्यक्ति का चिड़िया के साथ, व्यक्ति का वर्ड्स के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो सिमिली है. जैसे आपने +1 में यू हैव रेड द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसमें जो ग्रैंड मदर है उनके बालों का कंपैरिजन स्नो के साथ करते हैं. हर हेयर इज एज वाइट एज स्नो, सो दैट इज सिमिली. इन दिस पोएम मदर्स फेस इज कंपेयर्ड टू late winter's moon. The line is, I looked again at her when pale as a late winter's moon. Her mother's face is compared to late winter's moon. So this is the simile. Now I want to tell you that there is no rhyming schemes, no proper rhyming scheme in this poem. It is written in blank verse. इसमें कोई rhyming scheme नहीं है. जैसे ऊपर की लाइन का नीचे की लाइन के साथ कोई रिदम, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. ये इस तरह की पोएम को हम क्या बोलते हैं कि दैट इज रिटन इन, कंपोज्ड इन ब्लैंक. आई होप you enjoyed the poem. So keep learning. Thank you.